Good afternoon, everyone. Okay, चलिए. So let us revise what we were doing. तो हम कर रहे हैं financial market chapter. इसमें कल हमने किया था secondary market के बारे में हम बात कर रहे थे. Secondary market is also called stock market or stock exchange. Stock exchange के functions हम पढ़ रहे थे last class में. So what are the functions of stock exchange? It provides liquidity and marketability to existing securities, price discovery, then spreading of equity cult, then safety of transaction कि अब transactions काफी safe हो गई हैं क्योंकि well regulated हैं, well defined है, providing scope for speculation and contributes to economic growth. बताइए, do you remember all these points? Okay. Jay, were you there in the last class? No, ma'am. Okay. Kashish, can you explain this point to me? Contributes to economic growth. Contributes to economic growth. क्या बोलते हैं जब contributes to economic growth means जैसे जो investors होते हैं यानी कि ordinary retailers होते हैं जो shares में invest करते हैं वो जो ideas पसंद होते हैं वो उसमें invest करते हैं जिसकी वजह से हमारे growth को contribution Correct. So like there is transfer of funds from savers to investors, and through the process of disinvestment and reinvestment, we choose the best इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज. और जैसे आपने बोला कि हम उनको पैसे देते हैं हु हैव द बेस्ट बिजनेस आइडिया, तो वो फिर प्रोडक्शन करते हैं आगे हमारे पैसे को यूज करके, जिससे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सोचिए अब हम अपने ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. So two important topics are left in this chapter. One is the trading procedure कि हम कैसे shares में trading कर सकते हैं, and the second is SEBI के बारे में अभी हमें पढ़ना है. So these are the two important topics which we are left with. तो अब हम अपने second last topic की तरफ बढ़ रहे हैं, trading procedure की तरफ हम बढ़ रहे हैं. उससे पहले हम बात करेंगे, open this page of your book 281. डीमटीरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्लियर शेयर्स यूज्ड टू बी इन फिजिकल फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे. अगर आप बात करो 80s की और अर्ली 90s की, तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, इफ दे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि शेयर्स पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे. But there were so many problems with that. अब if they are in paper form, वो चोरी हो सकते हैं, there can be theft, they can be fake, and खराब हो सकता है पेपर. So these problems were there. इसलिए फिर डिसाइड किया गया कि शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देंगे. And this conversion of shares or securities from physical form to electronic form is called dematerialization. Dematerialization. ऐसा word क्यों है? देखो, material is like an object, like paper. Material को समझो जैसे paper. Dematerialization, like not in the form of a paper. So that is how this word has come up. Can you understand? Okay, let us read this. All trading in securities is now done through computer terminals. Since all systems are computerized,
Buying and selling of securities are settled through an electronic book entry form. This is mainly done to eliminate problems like theft, fake or forged transfers. जैसे मान लीजिए फेक तो आप समझते हैं, झूठे मूठे सर्टिफिकेट्स बनवा लिए. फोर्ज्ड इज लाइक अगेन किसी आपकी जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, कोई फ्रॉड करना चाहते हो आप, आपने किसी से जबरदस्ती साइन करवा लिए कि वो अब आपके नाम पे हो गए हैं शेयर्स, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी. ट्रांसफर डिलेज, मान लीजिए मैंने शेयर्स आपको सेल कर दिए. आई लिव इन लेट्स से चंडीगढ़, यू लिव इन लेट्स से मुंबई, तो मैं आपको फिर भेजती थी शेयर सर्टिफिकेट्स थ्रू पोस्ट. डोंट यू थिंक इट वुड टेक सो मच टाइम? यस, सो दैट इज ट्रांसफर डिलेज. मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट भेजूंगी, फिर कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी चेंज होगा नाम, कि पहले शेयर्स मेरे नाम पे थे अब आपके नाम पे, कितनी प्रॉब्लम होगी, यू कैन इमेजिन. सो देयर वर ट्रांसफर डिलेज and paperwork associated with share certificates or debentures held in physical form. So there were a lot of problems. This is a process where securities held by the investors in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she or he can hold it as an electronic balance in an account. ये सब अभी आपको समझ में आएगा. Electronic entry, balance in an account क्या मतलब है? We'll talk about it. This process of holding securities in electronic form is called dematerialization. So first, remember this word. पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट. देन द शेयर्स वर कैंसल्ड, फिजिकल फॉर्म में उनको कैंसिल करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एवरीवन से, राइट? सो इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड. चलो इसके बारे में लिखते हैं. What were the problems associated with securities in physical form, securities held in physical form, and second is what is dematerialization? ठीक है. There were numerous problems associated with share certificates or debentures held in physical form, like problems like theft, fake or forged transfers, झूठे मूठे डॉक्यूमेंट्स, फोर्स करके आप किसी से साइन करवा लो, ट्रांसफर्स करवा लो अपने नाम पे. ट्रांसफर डिलेज, पोस्टिंग करनी पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट करोगे शेयर सर्टिफिकेट्स. पेपर वर्क, and actually a lot of other problems which they have not mentioned here. A paper can get torn, spoiled, so a lot of problems associated. ये हो गया. Then dematerialization. Dematerialization is a process where securities held by the investor in
the physical form are cancelled और इन्वेस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे दिया जाता है, इसकी हम बात करेंगे अभी। और एक अकाउंट के थ्रू, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे ही हमारा शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट होता है, उसमें शेयर्स आते हैं जाते हैं। इफ आई बाय द शेयर्स तो उसी अकाउंट में शेयर्स मेरे विजिबल हो जाते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एंड इफ आई सेल द शेयर्स तो उसी अकाउंट से शेयर्स माइनस होके दिखते हैं। एंड द इन्वेस्टर इज गिवन an electronic entry or number so that she or he can hold it as an electronic balance। जैसे आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है रुपीज में, ऐसे ही आपका एक शेयर का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें शेयर्स का बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। So securities held by the investor in physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry or number so that she or he can hold it as an electronic balance in an account। यहाँ तक लिखें। Is it clear? बताइए, कैन वी मूव ऑन? यस जय। विषय वो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बस इसके बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ, उससे ही आपको क्लियर होगा कि ये अकाउंट कौन सा होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक एंट्री क्या होती है। तो बेसिकली अभी इतना समझा है आपने कि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, और जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसे आते हैं जाते हैं, ऐसे ही शेयर्स को होल्ड करने के लिए भी आपका एक अकाउंट होता है जिसमें इफ यू बाय शेयर्स तो उसमें ऐड हो जाते हैं, इफ यू सेल शेयर्स तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, फिजिकल पेपर फॉर्म में कुछ भी नहीं है अब। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिससे आपको ये अकाउंट पता लगेगा कि कौन सा होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कौन सी होती है, राइट? Okay, now Vishay, we are going to I think the most important and relevant to the real life topic, and which will actually might help you develop your interest in trading in shares। तो अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। काफी important टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफी इंटरेस्टिंग भी है आपका, क्योंकि बहुत ही relevant to the real life है। The topic is steps in the trading and settlement procedure। Steps in the trading and settlement procedure। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको बताया गया कि अगर आपको शेयर्स खरीदने बेचने तो आप कैसे कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में।
वैसे प्राइमरी मार्केट में भी चल जाएगा, एक ही प्रोसीजर है, हम एज एन इन्वेस्टर तो हमें एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, लेट मी टेल यू, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बुक से तो थोड़ा तो बुकिश होगा ही, देखो थोड़ा तो थियोरेटिकल सा लगेगा आपको कि थोड़ा बुक वाला उन्होंने फील देना है ना, बट आई विल ट्राई टू रिलेट इट, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है उतनी हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शेयर्स में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कैसे होती है, व्हाट इज द होल प्रोसेस एंड हाउ थिंग्स वर्क, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैन वी स्टार्ट? ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा। ब्रोकर इज लाइक एन इंटरमीडियरी और लाइक अ मिडलमैन। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, क्या आपको एक्चुअली किसी के ऑफिस में विजिट करना होगा? देखो, अभी पुराने कन्वेंशनल ब्रोकर्स भी हैं, आज के समय में भी कुछ लोग हैं जो एक्चुअली फिजिकली दे विजिट अ ब्रोकर, उसके ऑफिस में जाते हैं और फिर उससे सब कुछ समझते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। बट अगर हम लोगों की बात करें, आप लोगों की बात करें जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अवेयर हैं और थोड़ा ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हैं, तो हमें किसी के पास विजिट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। यू सिलेक्ट अ ब्रोकर ऑनलाइन, बट ब्रोकर के ऑफिसेस भी होते हैं जो लोग ऐसे सीधा ऑनलाइन बिलीव नहीं करते, दे कैन एक्चुअली विजिट अ ब्रोकर। आपके घर के आसपास भी आपको ब्रोकर्स मिल जाएंगे। आसपास से मेरा मतलब है इन द मार्केट यू गेट टू सी, जैसे बोर्ड्स लगे होते हैं, सीए का बोर्ड भी आपने देखा होगा, ऐसी ब्रोकर्स के भी ऑफिसेज होते हैं। so some people go and visit the office, but for people like us we can just do it online. So you need to have a broker. तो broker is like an intermediary or a middleman, जो आपके आपके और कंपनी के बीच का एक लिंक है। Are you able to understand? ओके, तो अब आप ब्रोकर के पास जाओगे या ऑनलाइन या विजिट करोगे तो क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो यहां से मैं यहां से रेफर करूंगी, फिर मैं इजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। If an investor wishes to buy or sell any security, like we people, he has to first approach a registered broker. ये ब्रोकर कोई ऐसा चलता फिरता इंसान है या ये सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए? सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट? और अ सब ब्रोकर एंड एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद हिम। तो बेसिकली अगर मुझे शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मुझे एक ब्रोकर को ढूंढना होगा। मैं ये ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, और मुझे साइन करना होगा, आई विल हैव टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट। आई विल हैव टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट। बेसिकली उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि ब्रोकर की कमीशन कितनी होगी, कैसे कैसे काम होगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा जो मुझे साइन करना है। और ऑनलाइन में कैसे साइन करूंगी? ऑनलाइन भी साइन कर सकते हैं आप? टेल मी। यस, हम कर सकते हैं। दो तरीके, एक तो जो होता है आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, यस होता है ना, इसे डॉक्यूमेंट के नीचे या तो वो, या तो डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं, आप ऑनलाइन भी अपने सिग्नेचर भेज सकते हैं। तो यू विल हैव टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट, जिसमें बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ब्रोकर की कितनी कमीशन होगी वगैरह वगैरह उसमें लिखा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको फिल करना होगा, ये तो आपने साइन कर दिया, उसके बाद आपको फिल करना होगा एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं क्लाइंट हूं,
I am a client for whom? Investor. No, I am the investor also. I am the client also. For whom? Broker. For the broker. Right. Then I will have to fill a form. ये तो बहुत जरूरी है विषय, मुझे अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी होंगी ना, ऐसे थोड़ी कोई भी शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकता है. बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं. थोड़ा बुकिश को भी साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें रियल लाइफ से भी रिलेट करना है. सिंपल रखें. सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फिजिकली ऑफिस पे भी जा सकते हैं ब्रोकर के. जैसे मैं नाम बता रही हूँ, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब ऐसे आजकल बड़े चल रहे हैं ब्रोकर्स, वेरी पॉपुलर वंस. तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और फिर you will sign an agreement and you will fill out a form which is called client registration form. Now ये फॉर्म में आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, डिटेल्स देनी होगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल जिसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, दैट इज पैन. व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर. ये क्या है? Okay, I'll show you my PAN card. Okay, so जैसे आपने अपने पेरेंट्स का भी देखा होगा, it is a mandatory detail that you have to give out if you want to trade in shares. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पैन क्या होता है कि इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर. मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं. और जब मैं अपना पैन बनवाती हूँ तो मैं एक तरह से खुद को रजिस्टर करवा देती हूँ विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री, ताकि अगर मैं कभी बच ना सकूं इनकम टैक्स की नजरों से. मैंने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास. अगर कुछ भी गड़बड़ मैं करती हूँ इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, तो वो मुझे पकड़ लेंगे थ्रू माय पैन. तो अब मैंने अपना पैन दे दिया है व्हेन आई हैव टू ट्रेड इन शेयर्स, तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टैक्सेशन. मैं टैक्स में कोई गड़बड़ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी वो वाली इंफॉर्मेशन दे दी है जो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ने में यूज कर सकता है. तो पैन बनवाने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. बट अभी तो अगर आप ट्रेडिंग फिर भी करना चाहते हो, यू कैन यूज द पैन ऑफ योर पेरेंट्स. आप अपने गार्डियंस का, पेरेंट्स का पैन यूज कर सकते हो और यू कैन प्रोसीड. तो दिस इज अ मैंडेटरी डिटेल. मतलब मैंडेटरी का क्या मतलब हुआ? मतलब इसके बिना तो बढ़ ही नहीं सकते. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपल्सरी. ओके, ये 10 डिजिट नंबर होता है, ठीक है. तो ये आपको जरूर देना है when you are filling out the form. Then you have to give your date of birth, address, जैसे नॉर्मल डिटेल्स देनी होती है किसी भी फॉर्म को फिल करने के समय. देन योर रेजिडेंशियल स्टेटस, आप इंडिया में रहते, कहाँ रहते, आप इंडियन है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है. आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब आपको देना पड़ता है. इसके बिना नहीं काम चलेगा. Then your educational qualification, sometimes they might even ask you कि आप क्या करते हो, कितनी आपने पढ़ाई की हुई है. ये डिटेल्स भी हमें देनी पड़ सकती हैं. And occupation. Okay. Then नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड. अगर मैंने किसी और ब्रोकर से भी मेरा चल रहा है ट्रेडिंग का काम, तो उसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी होगी. तो मतलब
ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। मेन आप ध्यान रखें, पैन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, रेजिडेंशियल स्टेटस। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद whom registered। ओके, तो ये हमें बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फिर जब मैं ये डिटेल्स दे दूंगी, फिर क्या होगा, फिर ब्रोकर जो है वो मेरे नाम पे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा, कि मैंने आपके नाम पे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया है, जैसे जो भी आपका नाम है उसके नाम पे एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया है। अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना शेयर्स में ट्रेडिंग। सो समझो भी और साथ साथ इसको लर्न भी करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए भी इसको प्रिपेयर करना है। So if an investor wants to buy or sell securities, then he or she has to first approach or select a broker. Then you have to, and that broker should be registered broker. Then you have to sign a broker client agreement, which has the basic terms and conditions. Then you have to fill a client registration form in which you have to give out certain details. And out of that, PAN is a mandatory detail. कई बार 1 mark का question आता है कि for trading in shares, which information is mandatory to give out? And the answer is PAN. What is the full form? Permanent account number. Okay. Then give out the basic details. फिर broker will open a trading account in your name. तो पहला point हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है. Do you understand? Yes, ma'am. Everyone? Yes, Palak? Yes, ma'am. Okay. चलिए, ये पहला point है. There are many steps. Then the second step is, this is also a very important step, opening of DMAT account. ये जो डीमैट है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटीरियलाइजेशन एक्चुअली। तो ये तो पक्का पक्का आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है? इसको एक बैंक अकाउंट की तरह समझो, और काइंड ऑफ बैंक अकाउंट, पर इसमें पैसों की जगह शेयर्स की बातें होती है, सिक्योरिटीज की बातें होती है, कि मैंने कितनी सिक्योरिटीज खरीदी वो इसी अकाउंट में आ जाएगा, प्लस कितनी मैंने सेल की वो इसी में से हो जाएगा माइनस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब डीमैट अकाउंट आप कहाँ पे जाके खुलवाएंगे, इसके कई ऑप्शंस हैं। नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। नॉर्मल बैंक्स ऑल्सो ओपन दिस अकाउंट, तो यू कैन गो टू अ नॉर्मल बैंक एंड गेट दिस अकाउंट ओपन्ड। नहीं तो अगेन सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, यू डोंट इवन हैव टू विजिट। आपका जो ब्रोकर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ज़ीरोधा वगैरह जो ऑनलाइन फेमस है, वही आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में भी मदद कर देते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन, बट इफ यू वांट टू विजिट अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, यू कैन गो एंड गेट योर डीमैट अकाउंट ओपन्ड। तो ये तो मस्ट है, ये तो जरूरी है। तो डीमैट अकाउंट हमें किसके पास जाके खुलवाना है? एज आई टोल्ड यू, ये नॉर्मल बैंक्स भी खोलते हैं, बट इस केस में हम बोलते हैं उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई आपसे पूछे कि आप डीमैट अकाउंट किसके पास जाके खुलवाते हो, तो आप कहोगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अच्छा, इसका वर्ड का क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और ये हमारे नॉर्मल बैंक्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये हमारे नॉर्मल बैंक्स जो है, ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी काम करते हैं और हमारे लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं।
अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वर्ड का मतलब अभी आपको नहीं पता है, ठीक है, बट ट्राई टू जस्ट मेमोराइज दिस टिल दिस पॉइंट, ये पता लग जाएगा आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं डीमैट अकाउंट आप किसके पास जाके खुलवाते हो, तो आप क्या बोलोगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी बोलते हैं शॉर्ट में। और आपको पता है कि हमारे नॉर्मल बैंक्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। इस अकाउंट का एक और नाम है, दो ये इतना पॉपुलर नाम नहीं है फिर भी, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। ये अकाउंट हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके खुलवाना होता है for holding and transferring securities in the DMAT form. DMAT is a short form of dematerialization. He will also have to open a bank account. Okay, डीमैट अकाउंट भी खुलवाना होगा, बैंक अकाउंट भी, बट बैंक अकाउंट नॉर्मली हम सबका पहले से ही होता है, यस और नो? मोस्टली बैंक अकाउंट तो होता ही है, बस डीमैट अकाउंट आपको नया खुलवाना पड़ेगा। बट यस, यू नीड बोथ, यू नीड अ बैंक अकाउंट, यू नीड अ डीमैट अकाउंट इफ यू वांट टू ट्रेड इन शेयर्स। कहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट खुलवाते हो? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके। क्या मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का अभी नहीं पता आपको? ये नॉर्मल बैंक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। सब काम ऑनलाइन हो सकता है, यू डोंट हैव टू फिजिकली गो एंड विजिट एनीवेयर, बट इफ यू विश यू मे गो टू अ बैंक एंड आस्क देम टू ओपन योर डीमैट अकाउंट। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। तो आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट with a depository participant. डीपी बोलते हैं शॉर्ट में। For holding and transferring securities, for holding and transferring securities in the DMAT form. DMAT is a short form of dematerialization. आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जो कि मोस्टली हमारा पहले से ही होता है, बट यू नीड अ बैंक अकाउंट एज वेल. He or she will also have to open a bank account for cash transactions. क्योंकि जब आप सिक्योरिटीज खरीदोगे बेचोगे, पैसे आएंगे जाएंगे, वो भी तो फिर उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए ना, उसी से पैसे आएंगे जाएंगे. For cash transactions in the securities market. ओके, यहां तक लिखें. तो दो स्टेप्स हो गए हमारे. वन इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर and then opening of a DMAT account. DMAT account is also called beneficial owner account. Okay, now the next point is, ये point अब ब्रोकर इसमें आ जाएगा पिक्चर में दोबारा. हमने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया. नाउ प्लेसिंग एन ऑर्डर. प्लेसिंग एन ऑर्डर.
अगेन आप इसको इमेजिन करना कि थोड़ा अगर हम देखें कन्वेंशनल तरीका कि आप एक्चुअली ब्रोकर के पास जा रहे हो, उसको बता रहे हो कि मुझे ये शेयर्स खरीदने हैं, या आप ये भी इमेजिन करना कि ऑनलाइन ही सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो, तो दोनों पॉसिबल है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर में क्या होगा कि आप ब्रोकर के पास जा रहे हो और उसको बता रहे हो कि आपको इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, जो भी सिचुएशन है। You want to buy or sell the shares of this particular company at this particular price, और ब्रोकर को आप कह रहे हो कि तुम ये कर दो मेरे लिए। जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं 100 शेयर्स, और अभी रेट चल रहा है लेट्स से 200 पर शेयर। मैं ब्रोकर के पास गई और मैंने ब्रोकर को कहा कि जैसे ही रेट 2002 होगा ना, सॉरी 202 अगर रेट टच करता है, वैसे ही तुम मेरे शेयर्स बेच देना। ये मैं ब्रोकर को बता के आ रही हूँ। बट अगेन यू कैन इमेजिन, मुझे आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ये आपको किसी को एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है। पर अभी भी कुछ लोग कन्वेंशनल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। दे एक्चुअली विजिट अ ब्रोकर एंड टेल द ब्रोकर कि ये जब होगा तो मेरे लिए तुम ये शेयर्स खरीद लेना या बेच लेना। तो अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, आप ब्रोकर को कह रहे हो जब भी रिलायंस के शेयर का प्राइस 202 होगा, तभी उसी टाइम पे तुम मेरे 100 शेयर्स बेच देना। ठीक है, ब्रोकर ने नोट कर लिया कि जो भी आपका ऑर्डर है। So let us see here. The investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Buy या sell जो भी है. Clear instructions have to be given about the number of shares and the price at which the shares should be bought or sold. Clear instruction देनी है आपने, कितने shares कितने price पर खरीदने हैं या बेचने हैं, जो भी है, you have to give out clear instructions. Okay, the broker will then go ahead with the deal at the above mentioned price or the best price available. तो broker note कर लेगा and then broker will give you what? An order confirmation slip, कि मैंने आपका order note कर लिया है, ये लो order confirmation slip. Can you imagine? Yes, ma'am. तो you have to give out, थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से सोचो जैसे आप उसको विजिट कर रहे हो, बट वैसे तो ये सब कुछ अब ऑनलाइन ही हो जाता है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस, at which the shares are to be bought or sold. फिर वो नोट डाउन कर लेगा और वो आपको क्या देगा, व्हाट विल ही इशू, करेक्ट, ब्रोकर आपको देगा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप कि मैंने ऑर्डर लिख लिया, अभी ऑर्डर हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे आप Amazon पे कुछ खरीदते हो तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपको कंफर्मेशन आ जाती है ना कि योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। सो इट्स लाइक दैट। बताइए, बात समझ में आ रही है? ओके, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं आज के लिए हम। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फिर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कनेक्ट करेगा। सिंपल है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी प्राइसेस चल रहे हैं वो देखेगा
वो फीड कर देगा अपने सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि उसको सारा टाइम बैठ के देखना है कंप्यूटर पे कि 202 रेट कब टच होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू फीड इट इन योर सिस्टम कि जब भी प्राइस ये होगा तो एक नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए। आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर ऑल द टाइम। वैसे तो देर आर पीपल हु डू दैट, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स में। दे आर ग्लूड टू टीवी और देयर कंप्यूटर्स ऑल द टाइम। बट स्टिल मैं पहले ही फीड कर दूंगी कि जैसे ही रेट 202 होगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए। आई एम द ब्रोकर इन दिस केस। So the next point is कि I will look at the prices in the stock market and फिर मैं देखूंगी कि मेरा प्राइस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। This is the next point. Very simple short point. The broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the share and best price available. वो देखेगा क्या situation चल रही है prices की, जो मेरे क्लाइंट ने प्राइस लिखवाया है क्या ये हो रहा है अभी आसपास है इसके। सो द ब्रोकर विल गो एंड चेक द प्राइसेस, विल गो ऑनलाइन एंड चेक द प्राइसेस, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। The broker then will go online and connect to the main stock exchange जहाँ पे prices चल रहे हैं। Connect to the main stock exchange and वो मैच करेगा कि जो मेरे क्लाइंट ने लिखवाया है उसके आसपास कुछ चल भी रहे हैं प्राइसेस या नहीं। And match the share and best price available and best price available. तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझो कि जैसे वो अपने सिस्टम में फीड कर देगा कि जब भी प्राइस 202 होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। सो सिंपल है। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, opening of a demat account, placing an order, then broker will connect to the stock exchange and check the price available. इतनी बात समझ में आती है? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। दैट इज इट फॉर दिस क्लास। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इन द कमिंग वीक। यस पलक, वी अपॉइंट द ब्रोकर्स ऑनलाइन। हम मतलब जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली अवेयर है लोग, फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यंग लोग हैं, वो आजकल ऐसे कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं जाते। दे डू एवरीथिंग ऑनलाइन। यू कैन अप्रोच अ ब्रोकर ऑनलाइन, एब्सोल्युटली राइट। आप यू वेलकम। बस लास्ट बात ये बता रही हूँ, जैसे मैंने नाम लिया था ज़ीरोधा, आप इसकी एक बार वेबसाइट विजिट करके देखना सभी बच्चे कि मतलब क्या है उसमें लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस वर्क्स एज अ ब्रोकर एंड ये डीमैट अकाउंट भी आपका खुलवा देते हैं एंड एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन।